हाँ जी स्टूडेंट्स, इस तो पहला वाले लैक्चर दे विच अकाउंट्स दे नाल रिलेटेड असी मेन टर्म्स कीतियां सी। होप्स हो कि तुसी रिवीजन कीती होनी है। आपां अकाउंटिंग दा मीनिंग कीता सी, कॉन्सैप्ट ते उसदा प्रोसैस की है सारा, ते नाल आपां कुछ क टर्म्स कीतियां सी जिहड़ियां कि सानू अगे जाके अकाउंट्स दे विच काम आउणियां ने। उन्हां तो बिना जदों तक तुसी टर्म्स नहीं सीख लओगे, तुहानू टर्म्स बारे नहीं पता चलदा तां तुसी अकाउंटिंग नहीं सीख सकदे। ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਐਸੈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੈਪੀਟਲ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਐਸੈਟਸ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਈ, ਓਨਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਆਈ ਹੈ ਪਲੱਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਐਸੈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਕੋਲੇ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਹੀਕਲਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੈਟਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਟਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟਰਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਡੈਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁੱਡਸ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਐਸੈਟਸ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕੁਛ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਖਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਐਸੈਟਸ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਸੈਟਸ, ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ, ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਮੀਨਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਫਰਨੀਚਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੀਨਸ 5 ਸਾਲ ਲਈ, 10 ਸਾਲ ਲਈ, 15 ਸਾਲ ਲਈ, 20 ਸਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ। ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਸਾਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਸੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਟਰਸ ਹੈ। ਡੈਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਡੈਟਰਸ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਕੈਸ਼ ਐਟ ਬੈਂਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ। ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ। ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮੀਨਸ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੀਆਂ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਨ ਲਿਆ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੀਨਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਐਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਸਟ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਹਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨ ਕਰੰਟ ਮੀਨਸ ਲੌਂਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ। ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਓਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਓਨਰਸ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਐਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਡ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਐਸਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਟਸ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਦੇਣ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਏ, ਐਨੀ ਪਰਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਏ ਲਿਆ। ਏ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਏ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਏ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹50,000। ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ 50,000 ਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਏ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 50,000 ਕੈਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਐਸਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਵੀ, ਬੈਂਕ ਵੀ, ਸਟਾਕ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਕੈਸ਼। ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 50,000। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ 50,000, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਕੈਪੀਟਲ 50,000, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਕੁਅਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਨਟੂ ਬੈਂਕ ₹5,000। ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ, 5,000 ਰੁਪੀਜ਼। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਂਕ। ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ,
क्योंकि इस लाइन दे विच इस सैकेंड ट्रांजैक्शन दे विच कैपिटल कुछ नहीं दित्ती सानू, सिर्फ सानू ये कहा कि कैश है जिहड़ा वो डिपोजिट कर दिता गया बैंक दे विच। तां कैश नू कैपिटल नू असीं 0 लिखांगे। इधरली साइड आ जाओ, राइट हैंड साइड, इधर असीं कैश नू की करांगे माइनस करांगे। 50,000 सी साडे कोल पहलां कैश, उहदे विचों 5,000 की हो गया माइनस। तो वो 5,000 फिर कित्थे असीं जमा करा दिता बैंक दे विच। तो असीं बैंक दे बिल्कुल नीचे असीं लिखांगे प्लस का साइन पा के 5,000। इस नाल की होया कि साडी लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दोनों इक्वल रहीआं, कोई चेंज नहीं आई। जदों असीं इत्थे लिखांगे न्यू इक्वेशन, मतलब इन्हां नूं सॉल्व करके साडी न्यू इक्वेशन की बन गई। इन्हां दा असीं उपरों बिल्कुल टोटल करके लिख दईदा हुंदा 50,000 प्लस 0 50,000। क्रेडिटर हाले साडे है नहीं, जिवें जिवें साडी आऊगी अगे उस तरह असीं फिल करी जावांगे। फिलहाल साडे कोल कैपिटल है 50,000। इधरली साइड राइट साइड साडे कोल की है 50,000 माइनस 5,000, ये 45,000 साडे कोल की रह गया कैश। बाकी दा 5,000 कैश कित्थे है बैंक दे विच। तां इन्हां दोनों दा टोटल की है 50,000, इधर भी 50,000। नाल नाल असीं टैली करते जावांगे दोनों साइड। उस तो अगे साडी आ गई थर्ड इक्वेशन, थर्ड आ गई ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। गुड्स परचेज कीतियां, चीज़ां खरीदियां किन्ने दियां 10,000। तो गुड्स आईयां मीनस स्टॉक आया बिजनेस दे विच। स्टॉक साडा की है एसट है, तो एसट वाली साइड असी तीसरा की लिखांगे प्लस पा के स्टॉक। जिवें जिवें साडे कोल जो जो आइटम्स आई जाणगियां, जो जो टर्म्स साडियां अगे अगे आई जाणगियां, जे वो कैपिटल नाल रिलेटेड है तो असी कैपिटल च लिखांगे, जे क्रेडिटर नाल लाइबिलिटी नाल है तो असी क्रेडिटर, जे एसट नाल रिलेटेड है तो असी अगे 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 प्लस करी जावांगे। हो सकता है इत्थे अगे आ जाए कि फर्नीचर परचेज किया तो असी लिखांगे प्लस फर्नीचर। हो सकता है अगे आ जाए मशीनरी तो असी लिखांगे प्लस मशीनरी, क्योंकि सारियां साडियां की है एसट्स है। हुण इत्थे असी ट्रांजैक्शन की गल कर रहे हैं 10,000 दियां गुड्स परचेज कीतियां, तो कैपिटल लाइबिलिटी दे विच कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये विच ना तो कोई कैपिटल है ना कोई लाइबिलिटी है। इत्थे असी 0 लिखांगे, इधर असी इक्वल पा के लिखांगे परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। जे असी 10,000 दियां गुड्स परचेज कीतियां प्लस स्टॉक, इत्थे लिखिया प्लस 10,000, नवा कॉलम बन गया। पर जे गुड्स साडे कोले आईयां 10,000 दियां तो असी पेमेंट भी कीती होनी है ना, तो कैश साडा की हो जाऊगा माइनस हो जाऊगा 10,000 नाल। तो हुण साडा कैश इत्थे असी लाइन मार के इनू एंड कर देना। इत्थे लिखांगे न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू कैपिटल उन्नी चल रही है हजे तक 50,000, कोई इहदे विच होर कैपिटल नहीं आई, कुछ माइनस नहीं होया, इनू इस तरह एज इट इज़ लिखी जाना। इक्वल राइट साइड की है साडे कोल 45,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 35,000। कैश साडे कोल कितना रह गया 35,000, बैंक साडे कोले पिया 5,000, स्टॉक साडे कोल हो गया 10,000। तो इधरली साइड लैफ्ट साइड साडे कोल 50,000 है, इधर भी देखो 50,000 बनता है। 35 प्लस 5 40,000 प्लस 10 50,000, दोनों साइड्स इक्वल है। उस तो अगे फोर्थ साडी आ गई ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000। इत्थे भी गुड्स परचेज कीतियां, बट की है इत्थे क्रेडिट ते परचेज कीतियां। क्रेडिट ते मीनस उधारियां, पेमेंट नहीं कीती। इसका मतलब यह है कि कैश दे विचों कुछ भी माइनस नहीं होएगा। जे असी स्टॉक जड़ा गुड्स असी होर पहला 10,000 दियां खरीदियां सी, साडे कोल स्टॉक 10,000 का हो गया। हुण असी 5,000 का होर स्टॉक खरीद लिया, होर गुड्स खरीद लिया, इत्थे प्लस लिखता स्टॉक दे नीचे 5,000, तो साडियां हुण गुड्स साडे कोल हो गईयां 15,000 दियां। पर इधर साडे कोले 5,000 वध गया, 5,000 वध गया, तो दोनों साइड इक्वल भी करनियां ने। तो वो 5,000 फिर इधर किस रूप दे विच आऊगा, वो आऊगा क्रेडिटर। प्लस असी कैपिटल दे नाल एक कॉलम होर बन जाएगा क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि गुड्स जड़ियाँ परचेज कीतियां वो असी क्रेडिट ते खरीदियां, वो साडियां हो गई इधर साडी लाइबिलिटी हो गई, जिसनों असी नाम लिखांगे क्रेडिटर। हुण देखो इत्थे लिखिया सी परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, इत्थे कुछ नहीं लिखिया, कोई क्रेडिट नहीं लिखिया, कोई कैश नहीं लिखिया। जे क्रेडिट नहीं लिखिया इट मीनस ये कैश ते है। इत्थे स्पैशली लिखिया होया क्रेडिट, तो असी क्रेडिट की ही एंट्री पावांगे। गुड्स तो साडियां वध ही गई 5,000 दियां, तो इधर साडी लाइबिलिटी भी वध गई 5,000। हुण इधर 55,000 हो गया, इधर भी सारा 55,000। न्यू इक्वेशन के सामने असी की है इन्हां दा जोड़ कर देने हुंदे आ 50,000 है कैपिटल, क्रेडिटर साडे कोले 5,000 है, कैश साडे कोले 35, इत्थे कुछ नहीं सी 0 पा दिओ।
बैंक साडे कोल इत्थे कुछ नहीं सी, जीरो पा दिओ। 5000 पहलां दा पिया सी, स्टॉक साडे कोल हो गया 10 + 5 15000। हुण इन्हां दा जदों असीं तिन्नां दा प्लस करांगे 55000 बन गया। इधर भी लैफ्ट साइड भी 55000। नैक्सट फिफ्थ साडी इक्वेशन है। फिफ्थ दे विच है पेड रेंट ₹1000। रेंट पे किया 10000। हुण रेंट देखो, रेंट की है साडा खर्चा आ गया, एक्सपेंस आ गया। जदों भी कोई एक्सपेंस आउंदा हुंदा उहनूं असीं कैपीटल विचों माइनस करदे हुंदे। जे इनकम आऊगी तो उसनूं असीं कैपीटल विच प्लस करांगे। ये गल ध्यान रखण वाली है। पेड रेंट ₹1000, रेंट पे किया तो असीं कैपीटल दे विचों माइनस करता। हुण इधर तो 1000 रुपया घट गया लैफ्ट साइड चों, तो उधरों भी कटना चाहिए। उधरों कित्थों घटूगा? ना तो साडा स्टॉक गया, वो भी नहीं घटाउणा, ना साडे बैंक चों गए पैसे। इत्थे पर्टिकुलर फिर स्पैशली लिखिया हुंदा कि बाय चैक, चैक कराई हुंदा तो असीं बैंक चों घटा दिंदे। इट मीनस जे रेंट पे किया तो वो कैश ही गया होगा, तो फिर असीं कैश दे विचों 1000 माइनस कर दांगे। कैश साडे कोल रह जूगा, न्यू इक्वेशन जदों बनावांगे तो कैश साडे कोल रह जूगा 34000। बैंक साडा उन्ना ही है 5000, स्टॉक साडा भी उन्ना ही है 15000। इधरली साइड कैपीटल साडी 1000 माइनस होगी तो साडे कोल रह गई 49000 प्लस 5000 साडा की सी क्रैडिटर। ये हुण साडा टोटल है 54000। इधर भी साडा टोटल बन जूगा 54000। उस तो अगे है 6th ट्रांजैक्शन है विद ड्यू ₹4000 फॉर हिज परसनल यूज़। हुण ए है जिहड़ा उसने ए विद ड्यूज, ए ने जिहड़ा ओनर सी ए उसने 4000 रुपया बिजनेस दे विचों परसनल यूज़ दे लई विदड्रू कर लिया। विदड्रू मीनस कढ़वा लिया। तो यह की है? ड्राइंग है। ड्राइंग मीनस कढ़ाए हुए पैसे ए ने कढ़वाए है बिजनेस दे विचों। बिजनेस दे विचों कैश की हो जाऊगा? माइनस हो जाऊगा 4000। तो नाल नाल उसकी कैपीटल दे विचों भी 4000 माइनस होगा। बाकी सारिया एंट्रीज नूं किसी नूं नहीं छेड़ना हैगा, ना तो क्रैडिटर उहदे नीचे जीरो लिखांगे, बैंक वाले कॉलम च भी जीरो लिखांगे, स्टॉक च भी असी जीरो लिखांगे। हुण असी न्यू इक्वेशन जदों इसका टोटल करांगे, जो भी सैट करांगे इसका प्लस माइनस 49000 दे विचों 4000 ए ने पैसे विदड्रू किते है, तो बाकी दे साडे कोल रह गए 45000। 5000 क्रैडिटर है। 34000 दे विचों 4000 वो बिजनेस दे विचों कैश लै गया, तो 30000 कैश रह गया बिजनेस कोले। 5000 बैंक दे विच पिया, 15000 दा स्टॉक पिया। इन्हां दा टोटल आ गया 50000। इन्हां दा टोटल भी आ गया 15 + 5 20 + 30 50000। नैक्सट 7th है पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1200। सोल्ड गुड्स, गुड्स जड़ियाँ वेचियां फॉर कैश किन्ने दियां? 1200 दियां, बट उसकी कोस्ट प्राइस किन्नी सी? 1000। मीनस कि बिजनेस दे विच स्टॉक है जड़ा गुड्स जड़ियाँ पईयां ने वो 1000 दियां, जड़ियाँ कि किन्ने दियां वेचियां ने गियां? 1200 दियां। 1000 दियां गुड्स 1200 दियां वेचियां। तुहानूं बिजनेस का दस्सिया होया, बिजनेस का मोटिव की है? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। तो इत्थे क्लीयरली दिख रहा है कि 1000 दियां गुड्स 1200 दियां सेल कीतियां, मीनस 200 रुपया की हो गया, 200 प्रॉफिट हो गया। हुण जदों भी कोई सेल हुंदी है तो 200 का जिन्ना भी जो भी प्रॉफिट हुंदा वो प्रॉफिट कित्थे प्लस होगा? कैपीटल दे विच। ऑनर दी कैपीटल दे विच प्लस हो जाऊगा 200। इत्थे असी प्लस करांगे, प्लस उस तो बाद क्रैडिटर कुछ नहीं है, जीरो, इक्वल टू कैश आया बिजनेस दे कोल। किन्ना आया? चीज़ां वेचियां सी 1200 का कैश आया बिजनेस दे कोल। 1200 की आ गया? कैश। कैश वाले कॉलम च 1200 प्लस बैंक नाल कोई फर्क नहीं पिया, ये जीरो लिखिया। उस तो अगे स्टॉक साडा घट गया 1000 का, इत्थे असीं लिखांगे -1000। तो स्टॉक साडा किन्ने दा रह गया? 14000 का। 5000 साडे बैंक च पए ने। 30000 दे विचों 1200 असी कैश जिहड़ा वो प्लस हो गया, मीनस आया हैगा चीज़ां वेचियां सी, तो साडे कोल हो गया 31200। तो इधरली साइड साडे कोल की है? 5000 क्रैडिटर ने, अगे कोई नहीं सी, पहलां दे पए आ, पहलां दे चले आ रहा 5000। कैपीटल जिहड़ी साडी है 45000 पहलां सी, 200 का प्रॉफिट गेन हो गया।
उस तो बाद प्रॉफिट नूं इहदे विच ऐड कीता, ये साडे कोल आ गया 45,200। 45,200 कैपिटल हो गई, 5,000 साडे कोल की हो गया क्रैडिटर हो गए। ये हो गया टोटल इन्हां दा 50,200। इधरली साइड आ जाओ, राइट साइड 31,200 ये की है कैश पे बिजनेस के कोले, 5,000 की है बैंक दे विच है, 14,000 स्टॉक है। इन्हां तिन्नां नूं जोड़ के ये बराबर इहदा प्लस आ जाएगा, लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नैक्सट करते हैं। हाँ जी, अगली ट्रांजैक्शन है, असी न्यू इक्वेशन अगली लिखी सी 45,200 प्लस 5,000 इज इक्वल टू कैश 31,200, बैंक 5,000, स्टॉक 14,000। 8th पॉइंट है साडे कोल, 8th ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर ₹3,000 ऑन क्रेडिट। पहला भी सोल्ड गुड्स कीतियां सीगियां, गुड्स वेचियां सीगियां, चीज़ां वेचियां सी, बट वो कैश ते वेचियां सी तां असीं कैश इत्थे 1200 ऐड कीता सी। हुण की है क्रेडिट ते वेचियां। क्रेडिट मीनस फिर उधारियां वेचियां ना, उधारियां वेचियां, उधार नाल फिर की हो जाऊगा, एसेट साइड साडे कोल कैश नहीं आया। जे तक कैश ते वेचियां होंदियां तां असीं कैश ऐड कर दिंदे, इत्थे हुण कैश नहीं आया 3,000, बट कदे ना कदे तां आऊगा ही, कदे ना कदे आऊगा मीनस वो साडी की होगी एसेट होगी। एसेट होगी तो फिर असीं इत्थे एक चीज़ होर ऐड कर देंगे नाल डैटर्स। डैटर्स मीन जिन्ना तो पैसे लैने ने, किन्ने लैने ने 3,000, पर असी 3,000 प्लस तो करता तो इक्वेशन भी तो दोनों साइड बराबर होनियां चाहिए। बराबर किवें आउणगियां, जे 3,000 दे साडे डैटर्स ने असी पैसे लैने हैं तो वो कुछ तो लैके गए है ना, बिजनेस चों की लैके गए साडे तो वो 3,000 दी गुड्स परचेज करके लैके गए आ। असी उन्होंने 3,000 दियाँ गुड्स जड़ियाँ बिजनेस ने वो वेचियां ने गया। 3,000 इत्थे माइनस का साइन पा के, इत्थे प्लस का साइन पा के डैटर्स के नीचे असी 3,000 लिखता। उपर एक नवा होर पॉइंट बन गया साडे कोल डैटर्स, क्योंकि डैटर्स साडी की हुंदी है एसेट हुंदी है, इस करके असी एसेट साइड लिखा। जिवें इधर साडे कोल 5,000 क्रैडिटर सीगे, असी परचेज कीतियां सी उधार नाल, उधार ते चीज़ां परचेज कीतियां सी 5,000 दियां, तां असी क्रैडिटर लिखते सी। इधर असी वेचियां ने गईयां, असी पैसे लैने आ, तां इधर असी डैटर दे नीचे लिखा 3,000 प्लस, स्टॉक साडा 3,000 दा हो गया माइनस। तां न्यू इक्वेशन मीनस कैपिटल कुछ नहीं सी, जीरो लिखी, क्रैडिटर कुछ नहीं सी, जीरो लिखे, कैश भी कुछ नहीं सी, बैंक भी कुछ नहीं, इन्हों 0 लिख के स्टॉक असी माइनस किया 3,000 का, डैटर्स असी प्लस किए 3,000 के। न्यू इक्वेशन ते असी की है उपरों कैरी ऑन लैके चलांगे 45,200, क्रैडिटर 5,000, कैश 31,200, बैंक 5,000, स्टॉक साडे को रह गया 14,000 चो 3,000 माइनस किया 11,000, डैटर्स 3,000। इत्थों तक साडी ये 8th पॉइंट तक दी इक्वेशन होगी। 9th दे विच देखते हैं अगे की दिता होया। अगे सानूं दिता है कैश पेड टू सप्लायर्स ₹5,000, कैश पे किया सप्लायर्स नूं 5,000। देखो असी इत्थे उधारियां गुड्स लईआं सी, क्रैडिटर दे 5,000 रुपीज़ देण वाले रहिंदे सी, इत्थे आके 9th पॉइंट च असी पे किते आ। कैश पेड किस नूं टू सप्लायर्स जिन्हां तो गुड्स खरीदियां सी ₹5,000। कैश पे मीनस कैश बिजनेस के विचों पे करता, माइनस हो गया, चला गया। पहला पॉइंट की हो गया, कैश की हो गया, माइनस हो गया। कैश के नीचे असी लिखांगे -5,000। फिर किस नूं असी दे दिते 5,000 क्रैडिटर नूं, तां क्रैडिटर भी साडे की होणगे माइनस हो जाणगे, क्योंकि यह साडी लाइबिलिटी खत्म हो गई। पहला साडे प्लस किए हुए सी, क्योंकि असी साडे यह लाइबिलिटी देण वाली रहिंदी सी। जदों लाइबिलिटी घट जाती है तो असी उसनूं कर दिंदे आ माइनस। इधर भी 5,000 माइनस हो गए, इधर भी 5,000 माइनस हो गए, दोनों साइड्स इक्वल ही होणगियां। न्यू इक्वेशन दे विच असी बाकी टर्म्स नूं 0 ही लिखी जाना, क्योंकि साडे कोल है नहीं कुछ भी इहदा वेरवा। जो चीज़ सानूं दसी जाती है असी उही टर्म लिखांगे, बाकी दियां नूं असी 0 मैंशन करांगे। उस तो अगे साडे कोल आ गया 10th पॉइंट, कैश रिसीव्ड ₹2,000 फ्रॉम द कस्टमर्स। कस्टमर्स नूं 8th पॉइंट दे विच असी गुड्स सोल्ड कीतियां सीगियां। गुड्स सोल्ड गुड्स किन्नियां 3,000 दियां, तो इत्थे साडे डैटर्स बन गए सी 3,000 दी। 10th पॉइंट च आके असी कैश रिसीव कर लिया, बिजनेस ने कैश रिसीव किया ₹2,000। सारे नहीं दिते हजे, 2,000 दिता, देने किन्ने सी 3,000, दिते सानू किन्ने 2,000।
फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर मीनस गाहकां तो जिन्हां नूं चीज़ां जड़ियां गुड्स जड़ियां ओह वेचियां सी। तो 2000 साडे कोल कैश आया। कैश रिसीव मीनस प्लस होया कैश। कैश पेड मीनस माइनस हो गया बिजनेस चो कैश। कैश रिसीवड मीनस बिजनेस दे विच कैश आया मीनस कैश 2000 कैश वाले कॉलम दे नीचे प्लस होया। तो 2000 फिर माइनस कित्थों होया? डैटर्स। 2000 दे डैटर्स की हो गए? घट गए, माइनस हो गए। 3000 लैने सी पैसे, 2000 सानू आ गए, बाकी दे साडे किन्ने रह गए डैटर्स? 1000 दे डैटर साडे रहिंदे ने हजे, जिहड़े कि असी आउण वाले समय च सानू मिल सकते हैं। अगे आ गई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कैपिटल। क्रैडिटर साडे खत्म हो चुके हैं, इत्थे खत्म हो गए सी। असी 9 पॉइंट दे विच सप्लायर नू पेमेंट करती सी, तो क्रैडिटर साडे 0000 आई जाऊगी एंड तक। कैपिटल साडी 45,200 45,200 जदों तक होर कैपिटल नहीं आउंदी जां कोई इनकम जां कोई लॉस जां कुछ भी नहीं आउंदा, तो ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यह सेम ही रहेगी। इस साइड साडे कोल कैश की हो गया? इत्थे 2000 कैश साडे कोले आ गया, क्योंकि कैश रिसीव किया साडे कोल हो गया 28,200। इत्थे असी कैश माइनस किया सी क्योंकि असी पे किया सी। इत्थे कैश साडे कोले आया, असी रिसीव किया, इस नूं इहदे विच जोड़ दिता गया। बाकी दे सारे बैंक दा कॉलम, स्टॉक दा कॉलम उस तरह ही रहणगे। 11th ट्रांजैक्शन है साडी परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज़। फर्नीचर परचेज किया। सब तो पहला तो फर्नीचर तुहानूं पता कि अपनी एसट है, यह बिजनेस की एसट है, तो इत्थे असीं नवां कॉलम एक होर ऐड करता प्लस फर्नीचर। मैं तुहानूं पहले ही यही गल कही सी कि जिवें जिवें एसट दीयां चीज़ां आई जाणगीआं असीं अगे अगे प्लस करते जावांगे। जिवें सानूं ट्रांजैक्शन च दस्सिआ जांदा असीं उसे तरह ही नवां नवां अगे अगे कॉलम बनाते जावांगे। परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। फर्नीचर बिजनेस दे विच आया 10,000 दा, बट कैश गया। कैश की होगा 10,000 माइनस हो गया। फॉर ऑफिस यूज़ मीनस ऑफिस यूज़ दे लई, बिजनेस दे लई। जे इत्थे ये मैंशन किया हुंदा कि ए ने परचेज फर्नीचर परचेज किया फॉर इज परसनल यूज़, अपने परसनल यूज़ लई, तो फिर कैपिटल दे विचों माइनस हो जाता। इत्थे पर्सनल यूज़ नहीं है, इत्थे है ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ दे लई फर्नीचर परचेज किया 10,000 का। 10,000 कैश माइनस होया, 10,000 फर्नीचर का प्लस होया, तो अमाउंट के कोई फर्क नहीं पिया। टोटल दोनों साइड का सेम आएगा। एक बारी लास्ट ते फाइनल इक्वेशन लिखांगे इसी, क्योंकि ट्रांजैक्शनस इत्थों तक ही सीगियां इस सम दियां। फाइनल इक्वेशन असी एंड ते लिखांगे, जिवें असी हर बारी लिखते सी न्यू इक्वेशन, बट एंड ते असी लिखांगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन च देखदे दोनों साइड्स इक्वल आउंदियां चाहे नहीं आउंदियां। कैपिटल साडी हैगी आ 45,200। क्रैडिटर साडे इत्थे आके है नहीं, जीरो है। कैश साडे कोल इत्थे रह गया 28,200 चो 10,000 माइनस किया 18,200। बैंक का साडे कोले हैगे आ हजे भी 5,000। स्टॉक भी साडे कोल हैगा 11,000 का। डैटर साडे हजे पए ने 1,000 दे। फर्नीचर साडे कोल हैगा 10,000 का। 18,200 प्लस 5,000 प्लस 11,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ प्लस साडे कोल हैगा 45,200। इधरली साइड भी लैफ्ट साइड साडे कोल है 45,200। इसका मतलब ये होया कि बिजनेस के कोल जिन्नी भी एसट्स है, एसट्स के चाहे वो कोल कैश है, चाहे बैंक है, चाहे स्टॉक है, चाहे डैटर्स ने, चाहे फर्नीचर है, कुछ भी है एसट नाल रिलेटेड जो भी है बिजनेस के कोले, उन्ना ही लैफ्ट साइड है जिहड़ी साडी अकाउंटिंग इक्वेशन दी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी उन्नी ही होनी चाहिए है। मीनस दोनों की अमाउंट सेम तुहाडी आ गई जे, तो यदा मतलब यह है तुहाडा सम जिहड़ा वो बिल्कुल सही है। इहदे नाल दियां तुसीं अपनी बुक दे विचों काफ़ी प्रॉब्लम्स दित्तियां होईयां ने, प्रैक्टिस करियो, कोशिश करियो। जिन्नियां भी टर्म्स ने तकरीबन मेरी कोशिश है मैं नाल दस ही रही हाँ, जो भी नवीं अगे होर कुछ रह भी जांदियां ने टर्म्स। जे अगे अगे जिवें जिवें कोई आपां जनरल एंट्रीज करांगे, इस तो अगला नैक्सट टॉपिक 3rd लैक्चर अपना होएगा जनरल एंट्री का। जनरल एंट्री दे विच होर भी बहुत सारियां नवीं टर्म्स आउणगियां, तुहानूं नाल मैं बिल्कुल चंगी तरह कोशिश करांगी, एक्सप्लेन करांगी, ताकि तुहानूं बिल्कुल चंगी तरह समझ आवे।
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਥੈਂਕ ਯੂ।